السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ سکوت بائے مریم مظفر کے ایپیسوڈ نمبر 8 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ شہر ایبٹ آباد کے ایک کھلی چھت والے ریسٹورنٹ کا منظر تھا۔ فاصلے پر رکھی میز اور قطرے ڈھلوان اتر کر بنی مصنوعی جھیل پر لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی ٹھہراؤ تھا۔ سفید رنگ کی میز پر کچھ خواتین بیٹھی تھیں، ادھیڑ اور پکی عمر کی امیر عورتیں جو معاشرے کے اہم شاخوں کا حصہ تھیں، سوائے نینا خاور کے۔ ان تمام پیشہ ورانہ عورتوں میں وہ ایک ایسی تھی جو پیسہ بنانا نہیں محض اڑانا جانتی تھی۔ جدید الفاظ میں ایک سوشلٹ۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں یوں بیٹھے، ریمائنڈز می آف دا گڈ اولڈ اسکول ڈیز، جب ہم سب کیفیٹیریا میں یوں مل بیٹھ کر کھاتے تھے۔ نینا کے سامنے بیٹھی سرمئی بالوں والی عورت نے یادوں سے چول لہجے میں کہا۔ وہ معروف بینک میں انویسٹمنٹ بینکر تھی۔ ہم سب تو یہی تھے، بس فرحانہ کو اٹلی جا کر رہنے کی پڑی تھی۔ کھانے کا ٹکڑا توڑ دی۔ ایک دوست نے دوسری پر چوٹ کی۔ چوٹ کرنے والے خود زیورات کے نقشہ کش تھی، جبکہ فرحانہ نامی عورت پبلک ہیلتھ آفیسر تھی۔ رہنے تھوڑی گئی تھی، بس بیٹی کی شادی تھی اور اس کی ڈیسٹینیشن ویڈنگ وہی روما میں ہونی تھی۔ نینا کے قریب بیٹھی فرحانہ نے ایک ادا سے کہا، اگر وہ تمام اپنی کامیابیوں پر نازا تھی تو کسی حد تک حق بجانب تھی۔ یہ تمام کامیابیاں اللہ نے انہیں محنت کی صلہ نوازی تھی۔ شادی سے زیادہ آیا نینا، تمہارے بیٹے کی بھی تو اس سال شادی تھی۔ اس سوال پر مسکراتے ہوئے نینا کا حلق اندر تک کڑوا ہوا تھا۔ اس کا نالائق بیٹا 33 کا ہونے کے باوجود بھی نہ کاروبار میں اچھا تھا، نہ گھریلو زندگی میں سمجھ تھا۔ ہاں، وہ اس ماڈل کے ساتھ انوالو تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرحانہ نے مدد کی خاطر سب کے چہرے دیکھے۔ زرش نہیں، زرلش۔ ہاں، زرلش منصور۔ وہ قصہ پرانا ہو چکا ہے۔ نینا نے صورتحال سنبھالنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی۔ وہ لڑکی خاندانی نہیں تھی۔ A lightning rood of gossips۔ زویب نے قصہ خود ہی ختم کر دیا تھا اپنے بوائے کٹ کو سیدھا کرتے۔ نینا نے بنا آستین والی جیکٹ تلے سفید سکرٹ پہنی تھی۔ ہاتھوں کی حرکات پر بھاری کڑے کنگ کھنکتے تھے۔ تو وہ کافی لمبے عرصے کے ساتھ نہیں تھے؟ بینکر کا سوال تھا۔ ابھی ساتھ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ نینا نے پاستے کا لقمہ بناتے ہنس کر کہا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ دل ہی دل میں وہ بیٹے کو انگنت القابات سے نواز چکی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو، کیونکہ تم بھی تو ہمارے ساتھ نہیں رہی تھی۔ 11ویں بھی مکمل نہ ہوئی تھی جب تم نے شادی کر لی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی فرحانہ نے مشروب پیتے تذکرہ کیا تھا۔ نینا نے کم عمری میں شادی کے بعد پڑھائی کو خیرآباد کر دیا تھا۔ 4 سال اس کی شادی چلی اور پھر ذوالقرنین کی موت کے بعد اس نے دوبارہ شادی نہ کی تھی۔ ویسے نینا، تمہیں دوبارہ شادی کرنی چاہیے تھی۔ یوں ہی تم نے آدھی سے زیادہ زندگی تنہا رہ کر گزار تھی۔ نقشہ کش لہجہ مخلص تھا۔ میں اکیلی کہاں ہوں؟ میرے پاس پیار کرنے والی ماں ہے جسے پیار کا پے بھی نہیں پتا آتا۔ ایک بہن ہے جس کا دماغی توازن ہلا ہوا ہے۔ بیٹا ہے جو کسی کام کا نہیں ہے۔ اتنی اچھی فیملی تو ہے میری، جلا کر بھسم کر دوں۔ اس نے اپنی محرومیوں کا ذکر خود ہی کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی محرومیوں کا ذکر خود تک ہی رکھا۔ وہ تمہاری فیملی تھوڑی، تمہارا خاندان تو تمہارے شوہر سے ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ جواب اس کا بیٹا سن لیتا تو حیرت سے دل کا دورہ پڑ جاتا۔ حجل کیسا ہے؟ فرحانہ کا لہجہ کھنکا۔ حجل اس کی ہر دوست کا پسندیدہ تھا۔ تم نے بیٹی بیاہانی ہے؟ یہ بات دل میں کہی، کیونکہ منہ پر کہہ کر اسے معاملات نہیں بگاڑنے تھے۔ ارے اس لڑکی کا کیا بنا؟ نیوز دیکھی تھی میں نے۔ اس نے حجل تو بہت پریشان ہوگا۔ فرحانہ کے سامنے بیٹھی عورت نے کباب اٹھاتے افسوس کیا تھا۔ ایسا ویسا کل سے مسئلے سے نہیں اٹھا تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑ آئی، اس کی کمپنی کو تو بہت نقصان ہوا ہوگا۔ پر یہاں نینا اپنی ہر سرگوشی اور زیر لب کہی بات کو بھلا بیٹھی۔ تعجب سے اپنی دوستوں کا چہرہ دیکھا۔ اس کی کمپنی نہیں، ہماری کمپنی۔ میرے ابا کے بنیادی سرمایہ دار تھے اور میری بہن وہاں کی چیئرمین۔ وہ تو بس ایک وقتی نشست پر ہے، ورنہ اصل پیشہ تو اس کا سیاست ہے۔ نینا نے ہنس کر اس کی تصحیح کی۔ حاجرہ کی تو ریٹائرمنٹ کی عمر آ چکی ہے، ظاہر ہے اب حجل کی چیئرمین ہوگا۔ ایسے کیوں؟ معمول سے زیادہ اونچی آواز میں بولی۔ تینوں نفیس عورتوں کو حیرت ہوئی۔
गला खंगारते इसने जज्बात काबू किए। हाजरा के बाद ज़ोएब चेयरमैन बनेगा। आखिर को इसका पहला हक है। जहाँ पहले वो तीनों हैरान थी, अब नैना की खुश फहमी पर इन्हें बेयकीनी हुई थी। यह ख्याल भी अभी भी इसे बैठे बिठाए आया था। आखिर को इसने कभी इस नहज पर सोचा क्यों नहीं? ये बात मैं सिर्फ तुम लोगों को बता रही हूँ, बाहर मत कर देना। अभी बाकायदा तौर पर तकरीब रखी जाएगी तो सारी दुनिया में तब ऐलान होगा कि ज़ुएब ज़ुल्करनैन SHK फार्मा का CEO और जाननशीन है। बुरहान बुरहाना बाजू मेज पर रखते वो आगे को हो चुकी। बकिया खाना इसने पेट भर कर खाया। बलाखिर इसकी निकम्मी औलाद किसी तो काम आई। मेरी बेबसी का जवाल अब खत्म होगा। वो गुजरते वक्त की घड़ियां गिन गिन कर थक चुकी थी। हजल सामियान के दफ्तर में बैठे 40 मिनट इसने फालतू ही घुमाए थे। कभी नजर घुमाकर जदीद तराश वाले मेज को देखती जिसकी जरा हटकर गोल्फ के लिए मसनूई खेल सजा था। नेज कमरे का एक कोना इसी खेल के लिए वक्फ था। गला खंगार कर जगह बदली और फिर सर पर मौजूद जदीद बत्तियों का मुआयना करके इस शीशों से बने दफ्तर की दीवारें देखी। 4 में से 3 दीवारें भूरे शीशे की थीं जिनसे बाहर का सारा मंजर दिखता था, मगर अंदर का एक धुंधला सा अक्स दिखाई देता। जबर से वहां बैठी सारा बिनते सलमान इस बात से नावाकिफ थी कि चंद आंखें इसे देख रही हैं। नजर फेरकर औरत के नीम रुख पर देखो। इसी CEO की सरबराही कुर्सी के पीछे जदीद सा मेज रखा था। मेज पर सजे चंद अवार्ड्स को देखो। एक पर गौर करो तो गोल्फ की गेंद सिर्फ एक गेंद ही ना थी। अंदर जुड़ा कैमरा दूसरे कमरे में बैठे हजल सामियान को सारा मंजर दिखाता था। मरजान शहीर का दोस्त था। इनकी संगत ने कुछ रंग तो लाना था। 40 मिनट हो चुके हैं सर। रुबैत के सर की वाइफ अभी तक आपके ऑफिस में बैठी हैं। आप टैबलेट पर स्टाइलिश फिरते। मिसबाह ने इतला दी। गोद में अपना iPad रखे हजल सोफे पर नीम दराज था। चाइनीज के खाली डब्बे में मेज पर धरे थे। ये छोटा सा कमरा इसके ऑफिस के पुष्ट पर मौजूद था जो अमूमन वो काम के वक्फे के लिए इस्तेमाल करता। रुबैत सर को क्लिनिकल लैब में गए 30 मिनट हो चुके थे। मैं अभी देख कर आया हूँ, इनकी मिसेस अभी भी इसी पोजीशन में बैठी हैं। सर झुकाकर टांग ऊपर चढ़ी। मिसबा हैरान हुआ था। सुरमई लिबास वाले हजल ने कोई राय ना दी थी। तकनीकी आला हाथ में उठाए वो दूसरी तरफ अपने ऑफिस का मंजर देख रहा था। मिसबा दुरुस्त था। सारा 30 मिनट में टस से मस न हुई थी, गोया कोई रेत का पुतला हो। इस खुफिया कैमरा की मौजूदगी से सिर्फ हजल वाकिफ था। चनाचा मिसबा भी इसकी हरकत से बेखबर था। कोई भी नॉर्मल इंसान आधे घंटे तक बुत बनकर नहीं बैठता। पाँव चिल्लाते हजल नींद दराज रहा। तो आप क्या चाह रहे हैं? वोट कर तोड़ फोड़ करें या फिर कोई चीज़ चुराएं? इतना तो नहीं भी इन्हें भी दिख रहा है कि इर्द गिर्द की CCTV कैमरा लगे हैं। होंठ पर उंगली रखे सियासतदान मुस्कुराया। इंसान दिखाई देने वाली चीज़ों को धोखा देता है मिसबा। जिसकी मौजूदगी का इल्म ना हो, इससे कोई सच नहीं छुपता। अपने बॉस की फलसफियाना बातों पर वो ऐनक दुरुस्त करके रह जाता था। बाकी बातें एक तरफ हजल सामियान के गिर्द अजीब हाला था, जैसे खतरे की घंटी हो या कोई तारीख शगाफ ऐसा जो करीब आने पर सुकून गारत कर दे। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? अंजाइना का अटैक हुआ था ना, वो एकदम सीधे होकर बैठा। बेहतर है, अब घर आ गई हैं। और तुम्हारे रिश्ते का क्या बना? फिर कब बुला रहे हो वलीमे पर? वो लड़का इसके पिछले 3 साल से मुलाजिम था। इसके घरेलू मसाइल से वो अब जज्वी तौर पर वाकिफ था। मिसबा की अफसरदगी से मुस्कुराने पर हजल ने तफक्कुर से चेहरा झुकाया। वलीमा भूल जाएं सर, वो अब कभी नहीं होना। हजल ने बेख्तियार क्यों कहा, पता नहीं, हमेशा कोई ना कोई मसला बन जाता है, कभी गाड़ी का कभी घर का, और अब इस बात पर कि 1 साल की मंगनी तोड़ी है कि लड़का बहुत कमजोर है। हजल ने इसकी जाहिरी कदोखाल देखे इनकार की वजह हकीकी थी। मिसबाल हक पर बाजू पर मांस हड्डियों से चिपका हुआ और गर्दन की हड्डी तक नुमाया थी। वो खतरनाक हद तक वजन में कम था। इसके घुटने पर हाथ रखते हजल खड़ा हुआ। तुम स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र इतनी हो चुकी है कि मर्द की ऐसी दुबली पतली जिसामत ना काबिल कबूल रहेगी। सर, मेरी सेहत का मसला। हजल ने इसकी बात खत्म होने से कबल हाथ चिल्लाया। सेहत के साथ ये मसला नहीं जुड़ा। तुम्हारा बॉडी मास ही इतना है, आज इसे अगले 10 साल बाद भी इतना ही रहेगा। मेरा मशवरा मान लो, मैं तुम्हें महंगे दामों में बिकते इंजेक्शन सस्ते में दिलवा दूंगा। हतनी मुस्कुराहट उछालते वो दरवाजे की सिमत बढ़ा। तुम जैसे हिंगरू को कोई लड़की शौहर तो क्या भाई भी नहीं बनाती। अपने पीछे मिसबा की खौफजदा रंगत की नकियों से देखते वो बाहर बढ़ गया था। फाइल का पलंदा हाथ में उठाए सर कोई मुलाजिम इस तक आई।
اپنے آفس کا دروازہ دھکیل کر اندر آتے حجل نے چوکھٹ وار کی۔ خاتون نے اس کا شکریہ کیا جب حجل نے ایک نگاہ سارا کے جھکے سر پر ڈالی۔ جب تک وہ پلندوں پر دستخط کرتا رہا، سارا کی نگاہ یوں ہی غیر مرئی نقطے پر مرکوز رہی۔ مسٹر عبید، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ میز پر ہلکی سی دستک دے کر سیاہ زلفوں والی کو مخاطب کیا بغیر گھبرائے سارا نے گردن اٹھائی اور پھر سلیقے سے سر ہلایا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے تعجب کو روک نہ سکا تھا۔ اس عورت کو جن ون تو نہیں پڑتے۔ ربید ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ نیچے ویئر ہاؤس میں ہے۔ اس کی لیب کے کچھ اکوپمنٹس میں ریجینکس کی لانچ کا کانفرنس میں آئی تھی۔ حجل کو بے اختیار حیرت ہوئی۔ وہ اپنی بات کے کاتے جانا نہیں بلکہ سارا کے بولنے پر تھی۔ وہ اس سے قبل بھی کچھ مرتبہ ربید کی زوجہ سے مل چکا تھا، مگر وہ سرسری سلام دعا تک محدود رہتی۔ یہ ان کی پہلی باضابطہ انفرادی گفتگو ہونے والی تھی۔ پھر کیا رائے دیں گی آپ میری میزبان ہے پر؟ اب وہ محفوظ تھا۔ دوائی کسی والنٹری کو چکھنے دینا سراسر بے وقوفی تھی۔ عمر رسیدگی کو گھٹانے کی دوا اپنے مؤثر اثرات سست روی سے دکھاتی ہے۔ جن لوگوں کو صحت کے سنگین مسائل ہوں، ایسی دوائیں صرف ڈاکٹر کے نسخے کے بعد لی جاتی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی رائے سنتا رہا۔ یقین سے تو نہیں، مگر میرا شک کہتا ہے کہ اس لڑکی کا کوئی اعضا بیمار تھا، غالباً ہارٹ پیشنٹ تھی، اور یہ دوا اس پر غلط طرح سے اثر انداز ہوئی، جس کے باعث دل کا دورہ آیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اپنی بات ختم کرتے اس نے کان میں پہنی نازک بالیوں سے بال آزاد کیے۔ سارا ذرا سا مسکراتے حجل نے توصیفی بھویں اچکائی۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ربید نے شادی میں اتنی جلدی کیوں کی۔ سارا اب بھی بالوں سے الجھی تھی۔ خوبصورت تو ہر عورت ہوتی ہے، عقل مند کوئی ہوتی ہے۔ آپ میں دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ربید از اے لکی مین۔ اس کی تعریفی لفظوں میں احترام تھا۔ اپنے بال اٹھا کر پشت پر گراتے سارا نے اس کے مداح سرائی ایک کان سے بھی نہ سنی تھی۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے مسز ربید کہ ہماری دوا باقیوں سے مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پہلی ڈوز پر ہی اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کی بے اختیاری پر حجل کھٹکا، مگر جب مقابل کی آنکھوں میں سنجیدگی دکھی تو گردن جھکا کر دل جمی سے ہنسا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں ربید کو مشورہ دوں گا کہ آپ پر آزما کر دیکھے۔ گرگٹ بھی اس آدمی کے آگے شرما جائے۔ ریجینکس ایک کثیر جہتی دوا ہے جو اینٹی ایجر کاسمیٹک نہیں ہے۔ یہ تمام ضمنی اثرات جن کا آپ نے ذکر کیا وہ سکن کیئر کمپنیوں کی بنائی ہوئی دوائی میں ہوتے ہیں، جنہیں وہ عمومی ماسکن ریمیڈی کے نام سے بیچتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ حکیم کی گولی۔ ہماری دوائیاں مراحل سے گزر کر لائسنس شدہ بنتی ہے۔ ان باتوں کا تو آپ کو بھی علم ہوگا۔ فاصلے پر بیٹھی عورت خاموش تھی۔ یہ دوا 2 سال تک صحت کے مسائل اور مکمل صحت یاب دونوں طرز کے لوگوں پر کلینکل ٹرائل کے بعد عوام میں آئی ہے۔ کلینکل ٹرائل یعنی دوا بنانے کے مختلف لوگوں اور جانوروں پر آزما کر اس کے اثرات ماپنا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دوا ہر کسی کے استعمال کے لیے موزوں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہتا ہے تو گو اہیڈ۔ مسکراتے سر کو خم دیا، گردن ہلانے پر اکتفا کرتے سارا ہنوز ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے صوفے کے پرش سے ٹیک چھوڑے سینے پر بازو باندھے موجود تھی۔ اسے فاصلے پر حجل میز کے پیچھے سربراہی کرسی پر تھا۔ کوئی بھی دوا 100% مؤثر نہیں ہوتی، وہ عطل لہجے میں بولی۔ آپ کے میاں کی بنائی ایک دوا 100% مؤثر ہے۔ سارا نے حجت خلق میں دم توڑ گئی تھی۔ آنکھوں پر شہد رنگ کی عدد سے لگائے حجل کی مسکان بے ضرر تھی۔ نرمی سے بولتے وہ اس کے گرد 4 دیواری باندھ گیا تھا۔ وہ شوہر کے سربراہ سے تو خلاف کر سکتی تھی، مگر شوہر کے خلاف جانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اس کے قبل حجل گفتگو بڑھاتا دروازے کی دستک نے خلل ڈالا۔ اجازت دینے سے پہلے اس نے شیشے کے پار کھڑے ربید زجاج کو دیکھ لیا تھا۔ سفید کوٹ پہنے، اینک چڑھائے اور چہرے پر دونوں دانوں کے بے بہا نشانات والا مرد پھولتے سانس سمیت اندر بڑھا۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ انکیوبیٹر کی وجہ درجہ حرارت قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ کونے میں موجود روم فریج کے سامنے جھکتے پانی کی بوتل نکالی۔ وہ سب کچھ جیسے کچھ معمول کی طرح کرتا گیا۔ حجل کے آگے موجود کرسی گھسیٹتے اس نے ہاتھ سے سارا کو بلایا، ادھر آ کر بیٹھو۔ ادھر تو املائی بیٹھتے ہیں، تم ملازم نہیں، فی الحال فارما کی مہمان ہو۔ کیوں سامیہ؟ میز پر کوہنی رکھے بے فکری سے کہا۔ بیوی ہو تمہاری، ذہین ہے، زجاج تم سے کیسے پٹ گئی؟ تمہیں نسخہ بتانے کا فائدہ نہیں، یہ صرف ون وومن مین پر چلتا ہے۔
और सजाहिया से बोला था, तभी तो पूछ रहा हूँ तुमसे कैसे पट गई। पानी पीते मर्द ने उसे नागवारी से घूरा। हचल भी टिटाई से सवाल ही बना रहा। इससे कबल रुबैत मजीद कुछ उगलता सारा ने खंगार कर इनकी तवज्जो खींची। मुझे यहाँ से मेरे ऑफिस भी जाना है रुबैत, अपने शौहर की जानिब झुकते सरगोशी की जो इतनी बुलंद थी कि हजल तक पहुंच जाए। अगर आप किसी दूसरी जगह जॉब कर रही हैं तो वहां से मुकम्मल मुस्तफ़ा होना पड़ेगा। यहाँ हम किसी ऐसे मुलाजिम को नहीं रखते जो किसी और कंपनी में लीव पर हो। हमें क्या मालूम वो यहाँ जासूसी की नीयत से आया है कि वाकई मुलाजमत करता है। सारा ने जवाब की नीयत से रुबैत को देखा। सामियान ये मेरे साथ असिस्ट करेगी। हमने जो 3 माह पहले रिजनिक्स की तहकीकी टीम के लिए इंटरव्यू लिए थे, इनमें से सब हमसे 3 लोग मुंतखब किए थे। एक की जगह मैंने सारा को दे रहा हूँ। हजल ने दिलचस्पी से भवें उठाई। सिफारिश पर मेरिट रखा है। अगर मेरिट की बात है तो सारा इन तीनों पर भारी है। एतमाद से कहते वो जमाने की उंगलियों से आगे इसकी ढाल था। वैसे भी मेरिट वहाँ होता है जहाँ मुकाबला हो, और सारा बिना किसी मुकाबले के भी इनसे बेहतर है। ये सीधा मेरी जूनियर्स रिसर्चर होगी, और वह तमाम मेरी गैर मौजूदगी में इसको जवाब था। मेज़ पर एक हाथ फैलाए कुर्सियां आमने सामने थी। सारा भी दोनों हाथ बाहम मिलाए गोद में रखे हुए थी। हजल ने बारी बारी दोनों मियाँ बीवी को देखा। कुर्सी के बाजू पर रखे इसके कफ दमके। फिर फोन उठाते इसने एचआर कॉल मिलाई। कुछ देर बाद एक औरत लैपटॉप उठाए अब पीछे सोफे पर मौजूद थी। सर्जन 3 लोगों को आपने हतमी फहरिस्त में डाला था। इनमें से किसी को भी अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा गया। अलबत्ता तीनों को अपॉइंटमेंट लेटर जरूर मिल दिया गया था। औरत की निगाहें स्क्रीन पर थी, जबकि कमरे में तीनों की इस पर तकरीरनामा आपने कहा था कि दवा के लॉन्च के बाद भेजना है, मगर फिर जब कल वो सारा मसला हो गया और अपनी बात अधूरी छोड़ते इसने रुबैद और हजल को देखा। अब बताएं साइंसदान साहब, इन 3 में से आपको क्या जवाब देंगे? सोशल मीडिया का दौर है, वो शोर मचा देगी कि मुझे भी नौकरी पर रखकर बुलाने से पहले निकाल दिया। गाल तले मुट्ठी रखे इसकी खराफती नजरें रुबैद का तवाफ करती रहीं। महागुलजार की मौत की वजह बनाकर आप वैकेंसी की फकदान जाहिर कर देंगे और इस नामजद शख्स से कह देंगे कि आप इंतज़ार फहरिस्त में हैं। जब कभी आसामी के मौके खेलेंगे तो आपसे राब्ता कर लेंगे। 3 चेहरे यकदम मुड़े और मेकान के अंदाज में बात करती सारा पर ठहरे। चुटकियों में मसला हल करते वो मुतमईन थी। मुलाजिम ने इजाज़त के लिए हजल को देखा। डू एज हर हाइनेस सेज। सारा को देखते हजल ने हथियार गिरा दिया। औरत ने सर हिलाते लैपटॉप पर उंगलियां चलाई। मेरा ख्याल है रुबैत, हमें तुम्हें सीनियर से हटाकर जूनियर कर देना चाहिए और सारा को रिसर्च इंचार्ज पर मुंसब कर देना चाहिए। इतना सा मसला तुमसे हल नहीं हुआ? मायूसी से हंकार भरी। इतना सा मसला बनाने की जरूरत भी नहीं थी। आप सरबराह हैं, एचआर आपको जवाब दे है, एक सीनियर एम्प्लॉय को नहीं। बादामी दराज आंखों ने गैर दिलचस्पी से सांवले चेहरे के साकत तासरात देखे। शीशों के इस कमरे में ताकत का खेल जारी था। तीनों में से सबसे ऊपर किसका हाथ है? इस खेल का खिलाड़ी हर घड़ी बदल रहा था, मगर नताज अखज़ किए जाएं तो खेल का ज़्यादातर हिस्सा सारा के हक में था। मेरा ख्याल है फिर सारा की नौकरी पक्की होगी। रुबैद ने माहौल की संगीनी तोड़नी चाही। 1 मिनट मिसलारे, पहली बात मर्द से जबकि दूसरी दरवाजे तक बढ़ती औरत से कहते। वो इसे रोक गया कि आपने रुबैद सर को इनका ट्रांसफ़र लेटर ईमेल किया? तबादला नामा इन अल्फाज पर इमारत की छत टूटकर दोनों पर गिरी। मैंने इनके ऑफिस भिजवा दिया है सर। क्या आपको इनको बताना चाहेंगी कि इनको हम कहाँ मुंतकिल कर रहे हैं? लारे ने सर हिलाया। डॉक्टर रुबैद सजाद अब से हमारे मेडिसिन प्लांट में बतौर फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट काम करें, यहाँ मरकजी लैब में नहीं। रुबैद बाकायदा जगह पर डगमगाते हुए बचा। इसकी होंक निगाहें लारे पर थी जो हजल के इशारे पर बाहर बढ़ गई थी। अपनी कुर्सी से उठते वो मर्द अब कुर्सी के पीछे रखी नाजुक चौकी तक आया। ये क्या है हजल? इसकी आवाज़ किसी खाई से आई। सफ़ेद कोट में बेख्तियार दम घुटा था। तस्ही गोल्फ के उस एजाज पर उंगली फेरते वो 2 टोक लहजा। मुझे रिपोर्ट मिली है कि रिजनिक्स का जो पेज हमने कल लॉन्च किया था, इसके महलूल यहाँ से नहीं बल्कि अब प्लांट जाकर बदले हैं। कैप्सूल में 50% IV बॉडीज है और 2 नंबर विटामिन को मिलाकर कैप्सूल भारी किया है, जिसके बाद इसके मोजी असरात महज 10% रहे।
پشت پر بازو باندھتے وہ دونوں جانب پلٹا۔ تمہیں وہاں جانا ہوگا روبیٹ، اپنی زیر نگرانی یہ سب کروانا پڑے گا، ورنہ ہمارے 3 سال کے اثاثے اور تمہاری 8 سالہ محنت رائے گا ہے۔ آگے آتے وہ میز پر جھکا۔ Culprit before it's too late you to find he the I want. میں چاہتا ہوں تم مجرم کو ڈھونڈو، اس سے قبل بہت دیر ہو جائے۔ آج سے قبل شاید ہی کسی نے حجل سامیان کو ایسا سنجیدہ دیکھا ہو۔ جہاں داغ اس کی شہرت پر آ جائے، وہاں وہ کیچڑ اگلے کی نسلوں پر ملتا تھا۔ یہ کام زویب کا ہے حجل، پلانٹ میں اگر ہے پھر ہو رہی ہے تو سیکیورٹی دیکھتی ہے، میں نہیں۔ تم اور میں دونوں جانتے ہیں کہ وہ آدھی عقل کا آدمی ہے۔ کسی نے وہاں اس کی نہ سنی اور اس نے بھڑ کر آدھے پونے پلان کو آگ لگا دینی ہے۔ روبیت کی التجا پر صاف گوئی سے کہا، اس کا غدار باپ ورثہ میں بس دھوکہ دہی ہی چھوڑ کر گیا ہے، کوئی مال مویشی نہیں کہ میں بیٹے کے نقصان بھرتا رہوں۔ روبیت نے لبوں کو ملاتے خاموشی اختیار کی۔ اس سارے عمل دخل میں سارا کی رائے تو جیسے بے معنی تھی۔ سائنسدان کی بے اختیار نظر اٹھی اور ساتھ بیٹھی سیاہ بالوں والی عورت کو دیکھا۔ شکست خوردہ سا ہوتے اب اس کی التجا کی تو سارا کے رخ پر ہوئی تھی۔ تم یہاں کام کر لو گی، میں ہوں یا نہ ہوں، کیا فرق پڑے گا؟ ہے تو دونوں ہی ایک ہی گروہ میں۔ جھکتے ہوئے وہ محبت سے سمجھانے لگا۔ سارا نے نظریں پھیرتے حجل کو دیکھا۔ وہ اپنی کرسی سے ٹیک جوڑے جواب طلب تھا۔ تراشیدہ جبڑے بھیجے اور پھر گہری سانس پڑتے وہ سارا متکلم ہوئی۔ میں اگر کام کروں گی تو تمہاری موجودگی میں نہیں، تو میں اپنی موجودہ نوکری کے ساتھ بھی مطمئن ہوں۔ چشمے کے پار نگاہیں بے یقین ہوئی۔ حجل نے آنکھیں اٹھا کر ایک فاتحانہ طنز کیا، اپنا نچلا ہونٹ کاٹا اور روبیت کی طرف دلچسپی سے دیکھا، جہاں اس کا سفید جلد والا چہرہ بے بسی سے سرخ ہوتا گیا تھا۔ ضبط آزمائی کرتے روبیت نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جب وہ کوئی بھی بات کیے جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا بستہ سنبھالا، بال درست کیے اور دروازہ پار کر گئی۔ شوہر پر ڈالی آخری نظر صرف انتباہ تھی کہ اسے اس کے فیصلے پر سے مت ہٹایا جائے۔ روبیت نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ خالی دیکھا تھا، مٹھی میں بھینچے اس کے کندھے تھلک گئے تھے۔ حجل اب ایک جانب موجود اپنی گولف کی چھڑی سنبھال چکا تھا۔ ایک آخری خیال جو روبیت کے ذہن میں آیا تھا وہ تھا زوال آتا ہے اور انسان سب سے پہلے تنہا ہوتا ہے، اور پھر مصنوعی گھاس پر گیند گرنے کی آواز نے ہر چیز اپنی لپیٹ میں لے لی تھی۔ تنہائی کیا تھی؟ کوئی گلزار خان سے پوچھتا۔ قبرستان میں بنی وہ ایک تازہ قبر تھی، پھولوں میں چھپی مٹی ابھی نم تھی اور کتبے کی جگہ بھاری سا پتھر کھڑا تھا۔ دو زانوں ہو کر پتیاں پھیلاتا وہ مرد کمزور تھا، لب بند تھے اور آنکھوں میں ضبط تھا۔ قضا ہوتی اثر میں وہ ان خاموش قبروں کے بیچ اکیلا تھا۔ اب مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، کتابیں پٹک کر پھینکتے یہ کوئی 17-18 سالہ ماہ تھی۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ماں، اپنی پوری زندگی تمہیں دے دی اور تم میری خواہش نہیں پوری کر سکتی۔ اپنی ماں کے ساتھ کمرے کے باہر بیٹھا مرد تڑک کر بولا تھا، میں نے بھی آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن اب یہ آزادی مانگتی ہوں کہ پڑھائی مجھے میری مرضی سے کرنی دی جائے۔ گرمیوں کی تیز دھوپ میں وہ ماں بیٹا باہر سٹینڈ فین لگائے تھے۔ جب ماں کمرے سے نکلی، ڈاکٹر نہیں بننا تو کچھ نہیں کرنا، گھر بیٹھو چپ کر کے۔ دو ٹوکسا کہتے گلزار گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر مزید رکتا تو شاید اس کی بغاوت پر ہاتھ کا استعمال کرتا۔ عمر رسیدہ درخت کی چھاؤں میں کھڑا آدمی خاموش تھا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اس کا چہرہ خشک رہا۔ یا اللہ، تیری امانت میں نے تجھے لوٹا دی، اگر میں خیانت کار ہوں تو مجھے سزا دینا، مگر میری بیٹی سے جواب طلبی نہ کرنا۔ اسے ایک کمزور باپ کی التجا سمجھ لے یا اپنے گناہ گار بندے کی آخری خواہش۔ منہ پر ہاتھ پھیرا تو مغرب کے اذانوں کی گونج بلند ہوئی۔ شام کا نیلگو اندھیرا ڈھلتے سورج کے نارنجی رنگ میں گھلا اس کے کاٹیج کے لان میں پھیلا تھا۔ گول کھڑکیوں سے دکھتا باغیچہ ایک لہ میں تراشا گیا تھا۔ اس ایک منزلہ گھر میں صرف اکیلا وہی باسی تھا۔ نازک سی بل کھاتی سڑک پر نکل کر دیکھو تو وہاں ہر گھر کو یا قدیم برطانوی راج کے وقت میں قید تھا۔ ہرے چھبے اور مضبوط باڑ کے پیچھے وسیع لان اور ایک وسط میں وہ بند گھر۔ اس علاقے میں کم و بیش رہائش پانے والے لوگ سرکاری عہدیدار یا پھر اونچی شملوں پر فائز تھے۔ ایسے میں حجل سامیان کا اس علاقے میں رہنا کسی وضاحت کا محتاج نہ تھا۔ آج کسی کی ریسیپی بک سے کھانا بنایا تھا مار کو، گھر والا ذائقہ تھا۔ ننھے تولیے سے ہاتھ پہنچتے حجل اپنے ملازم سے مخاطب تھا۔ لکڑی اور اینٹوں کے در و دیوار والا گھر
गरमाइश से भरपूर था। आपकी ग्रैनी जब यहाँ आई थी तो वो कुछ रेसिपी सिखा कर गई थी। बस इन्हीं में से बनाया पसंद आया आपको? गहरी रंगत और पिस्ता कामत वाले मार्को ने इश्तियाक से पूछा। इसका जवाब देने के बजाय हजल चलते हुए हॉल के कोने में आया। लकड़ी की नन्ही मेज पर कपड़ा मारते नर्म खौफ सदा सा हुआ। वजह खिड़की तले रखी वो शय थी। पाजामे की जेबों में हाथ डाले झुकते हजल ने मजबूत शीशे में मुकेद शय देखी। टर्मिनम में छुपा स्याह बिच्छू रेत और कैक्टस के साथ बनी नन्ही झोंपड़ी में बैठा था। इसकी स्याह जिल्द पिंजरे की मसनूई बत्तियों तले चमकदार थी। कत्थई रंग के लेंस में इश्तियाक भरपूर हुआ था। सुल्तान को खाना डाल दिया था। 6 इंच के इस बिछोने ना अपने मालिक को पलट कर देखा और ना किसी दिलचस्पी का इजहार किया। सर इसने तो कल वाला भी नहीं खाया। हजल का दिमाग भग से उड़ा। मार्को की इतला पर वो एकदम पलटा। तो तुमने इसे निकाला नहीं? अगर वो 24 घंटों तक अपना खाना न खाए तो उसे निकाल कर फेंक देना है। मार्को वो गज़ा जहर बन जाती है। ये ताकीद मैंने तुम्हें शुरू में की थी कि जब इसे कीड़े मकोड़े डालो तो ध्यान भी रखना कि सुल्तान खाता भी है या नहीं। सर वो मुझे काट लेता। मार्को ने अर्जी पेश की। तुम जैसी चीज़ों को काटने से पहले जानवर भी 10 बार सोचता है कि कहीं उल्टा जहर हम पर ही ना असर कर जाए। हजल ने तासुब से बंद पिंजरे को देखा। अंदर का मसनूई माहौल जानवर की ज़रूरत के मुताबिक था। तुम चाहते हो मेरा बेटा मर जाए? मुलाजिम को हजल सामियान की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। जिस जानवर से लोग दूर भागते हैं इसी को हजल ने घर में पाला था। सर आप इसे किसी और कमरे में रखवा दे। मैंने यहाँ आना जाना होता है। इसको देखकर अजीब खौफ से लगा रहता है कहीं शीशे पर नोक मारकर बाहर न निकल आए। घर के दाखिली रास्ते से आगे राहदारी थी और फिर वो मरकजी कमरा जिसमें एक कोने में हजल की औलाद मुकीम थी। जबकि खौफ तो सुल्तान को तुमसे लगना चाहिए। मतवक्को कातिल हो तुम इसके। सफाई करते मुलाजिम पर चोट की। आपने अगर कोई जानवर पालना ही था तो कोई कुत्ता बिल्ली रख लेते। मेरा भी वक्त गुजर जाता। ये महंगा बिच्छू उठाकर लाना जरूरी था? आखिर ये है किस काम का? सुल्तान की चाल पर नजरें जमाए हजल की निगाहें फैली। मजीद कुछ झुकते इसका चेहरा शीशे के करीब तरीन हुआ। तुमने बिच्छू और कछुए की कहानी सुनी? कछुआ से अपनी पुष्प पर बिठाकर दरिया पार करवाने की हामी भरता है कि बशर्तिया वो उसे डंग नहीं मारेगा, लेकिन वो अपनी फितरत से मजबूर से डंग मार देता है और यूं दोनों डूब जाते हैं। हाथ पुष्प पर बांधे मार्को ने अफसोस किया। गलत किया। जल्दबाज था वो, बेकाबू भी। अजल ने 2 उंगलियों से शीशे पर दस्तक दी। जब नदी पार हो जाती और शुक्रगुजारी का वक्त आता तब इसे मारना चाहिए था। बिच्छू का जहर बड़ा पुर असर है मार्को। इसे दुरुस्त वक्त और दुरुस्त शख्स के लिए महफूज रखना चाहिए। फिर तो इसकी खसलत तुम्हारी जैसी हुई। अपनी बात काटे जाने पर हजल उलझा। सीधा होकर सर उठाया तो माथे की सिलवटें गायब हो गई। चौखट पर खड़ी जर्लिश मंसूर का चेहरा सुर्ख था जबकि आंखें लहू बरसाती थी। सफ़ेद फर वाले भारी कोट समेत स्याह बेल बॉटम पहने वो सुनहरे बालों वाली मॉडल क़यामत बनकर खड़ी थी। स्याह लंबे बाल और सब्ज तेज नाखून के कत्ल के इरादे से तराशे थे। तुम अंदर कैसे आई? दरवाज़ा खुला था। यकीनन गलती से रहा होगा, वरना तुमने तो पीछा छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपना बैग मेज पर उछालते हुए उसके रूबरू आई। मालिक के आंख के इशारे करने की देर थी कि मार्को नजरें चुरा था वहां से निकल गया था। तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? बल्कि नहीं, तुम ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ? इसकी आंखें सूजी हुई थी। मस्कारे की तह बिगड़ने को तैयार थी। न मेरे मैसेज का कोई जवाब और ना मेरे मैनेजर को कोई इतला। हद तो ये है कि जब मैं ऑफिस आई तो आधे घंटे तक बिठाने के बाद तुम अपनी मीटिंग का बहाना करते निकल गई। जानते हो कल से मेरी जान सूली पर लटकी है कि जर्लिश मंसूर तुम्हारे प्रोजेक्ट और मुहिम का बुनियादी चेहरा, जिसकी शक्ल के बैनर और बोर्ड जगह जगह लगे हैं। कल जो लड़की बेहोश हुई इसका इस सानहे के असरात मेरे करियर पर भी आए हैं। सोफे पर होते हजल ने इसके शिकवा का जवाब न दिया था। वह हनूज इसके सर पर खड़ी लड़की लड़ रही थी। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स भर चुके हैं। 1 साल तक मैंने सिर्फ नूरे हयात के बारे में बात की है। लोग मुझ पर ताने कस रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि ये थी वो दवा जिसके इश्तिहारों में मैं आती थी रही। ये था वो मंसूबा जिसे मैं अगला कौमी वर्सा कहती थी। मैं तुम्हारी मुहिम की एम्बेसडर हूँ हजल सामियान। मैं अगर एक बदनाम ज़माना चीज़ को प्रमोट करूंगी तो उल्टा मैं भी इतनी ही बदनाम रहूंगी। बांस ने सोफे पर गर्दन गिराते हजल ने आंखें मूंद ली थी। इसकी बेपरवाही पर जर्लिश का फिशार खून ठाठे मारने लगा। आंखें खोलो और मेरी बर्बादी देखो हजल सामियान। इस गंद में तुमने मुझे फंसाया है। और तुम किस गंद की बात कर रही हो?
वजीर की रखेल बनकर रखने वाला गंध या नशे में धुत होकर वहां हाईवे पर गाड़ी दौड़ाने वाला गंध। इसकी ऊंची आवाज इंकशाफ की सच्चाई तले दबी आंखें बंद किए हजल का अंदाज मुतमईन था। अलबत्ता जर्लिश के पैरों से जमीन निकली थी। अगर तुमने दो खबासतों के बात कर रही हो तो आंखें खोलकर मॉडल को देखा। मैंने तुम्हें गलाजत से निकाला है जर्लिश बेगम। तुम्हें अपनी पुष्प पर बिठाते नदी पार करवाई है और इससे पहले कि हम साहिल किनारे आते तुम अपने मोहसिन को नोचने चली हो। जर्लिश का वजूद बेदम होते करीबी सोफे पर गिरा। हर सू अब महज माजी की स्याही थी। तुम एक बदनाम तरीन मॉडल जिसका करियर चलता ही काउच कास्टिंग पर था। इसको इज्जत किसने दी? मैंने। डीआईयू के मुकदमे पर किसने निकाला? मैंने। साबका वजीर सेहत से किसने बचाया? मैंने। हजल सामियान ने खुद की सिमत इशारा करते इसकी हिम्मा वक्त नर्म आवाज अब सख्त थी। अगर आज तुम्हें 4 लोग जानते हैं तो मेरी वजह से। तुम्हें काम मिलता है तो मैं दिलाता हूँ। अगर इस रोज जेल में तुम्हारा हाथ न थामा होता तो तुम इन जन्नत के इस पार खड़ी रहती और इसके झुके सर को देखते बोलता क्या, ये जिंदगी जो तुम गुजार रही हो जन्नत है और ये जन्नत मेरी बनाई गई है। चाहती हो तो मैं छीन लेता हूँ। जर्लिश के ठहरे आंसू इसके सफेद कोट में जज्ब हुए थे। चंद घड़ियों बाद इसकी कमजोर भीगी आवाज सुनाई दी थी। तुम्हारी मेहनत एक तरफा नहीं है अजल। अगर साबका वजीर सेहत के खिलाफ मैं तुम्हें सबूत न देती तो तुम इसे ब्लैकमेल कैसे करते, और अगर दबाव में न आता तो तुम्हें गैर मशरूत फेवर भी न देता। जर्लिश ने सर उठाया। आपके वहां बरहमी थी। इसका हाथ न होता तो तुम्हारी दवाइयों का काला धंध कब अवाम की नजर में आ जाता। वो गुस्से की शिद्दत से लड़सी या फिर अपने घिनौने मासी के बायस छोटे शहरों से आई ये लड़कियां यूं ही बड़े गिधों की लालच का निशाना बनती थी। हजर होंठ का कोना उठाते मुस्कुराया, बाहम मिलाते हाथ बाहम मिलाते आगे हुआ। तो यानी तुम मान चुकी हो कि ताली 2 हाथ से बजती है, और जब यूं ही हाथ मिलाए हम पहले भी कई वक्तों से निकल आ रहे थे, तो अब कैसी परेशानी जिश। तुम्हें आगे भी मेरी मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। हाथ बढ़ाते जर्लिश की कलाई में सजी बारीक चेन के हीरे दुरुस्त किए। जर्लिश के साथ बेख्तियार भारी हुए। शाम का अंधेरा खिड़की से झांक रहा था और लॉन्च में बत्तियां मत्थम थी। लेकिन साथ सिर्फ तुम्हें मेरा मिलेगा, मेरे भाई का नहीं। वो एक मजबूत मर्द है, मगर इतना नहीं कि तुम्हारे लिए वो सब करे जो मैं कर सकता हूँ। इसकी नाजुक कलाइयों उंगलियों में लेते हजल की नजर आती रग पर अंगूठा फेरा। जर्लिश का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब हुआ था। ज़ुएब को छोड़ो, इसे मेरा मशवरा समझो। इसका हाथ अपने हाथ में लेते हजल ने तजवीज़ पेश की। जर्लिश की सांस पीछे इसे सीने में धंस गई थी। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, हम 4 साल से साथ हैं। इसने नजरें चुराते कहा। मोहब्बत करती तो 15 मिनट पहले अपना हाथ छुड़ा लेती। अपनी हथेली पर रखा इसका मोमी लिब्बा हाथ बुलंद करते जताया। जर्लिश का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हुआ था। तुम इससे मोहब्बत नहीं करती, तुम इससे मोहब्बत के अंदाज से मोहब्बत करती हो। जैसे अभी मैंने तुम्हारा हाथ जरा सा सहलाया और वापस खींचने के बजाय तुमने बढ़ा दिया। वो हल्का सा हंसा। मॉडल का सर मजीद झुक गया। आपकी मस्नूई कत्थई आंखों में शरीर से खुशी थी। क्या चाहते हो तुम? हजल ने नाक सुखेड़ी। ज्यादा नहीं, बस ज़ुएब को छोड़ दो। सुनहरी बालों वाली लड़की ने बेख्तियार सर उठाया। इसके चेहरे पर ऐसा कर्व था जैसे किसी ने जान मांग ली हो। हमने एक दूसरे को 4 साल दिए हैं, ऐसे कैसे बिना वजह छोड़ दूं? 26 साल लड़की ने रुहासी हुई थी। वजह है तो इसका हाथ यूं आजाद किया जैसे कोई मकरूज शय थी। अभी तो मैं पहले तुम दोस्तों के साथ मालदीव गई तो तुमने इस पर चीट किया था। तुम इससे 7 माह पहले तुमने और ज़ुएब न्यूयॉर्क थे। जब वो पहले वापस आ गया और तुमने 2 दिन किसी रूसी रईस ज़ादे के साथ गुजारे। इसके अलावा 1 साल कबल तुम उम्रा से वापस किसी सऊदी आदमी के साथ पूरे 2 हफ्ते किसी रिजॉर्ट में रही। चाहती हो तो तस्वीर के साथ सारे सबूत दे देता हूँ। जर्लिश को खुद से ज्यादा हजल पर बेयकीनी हुई थी। वो आदमी जो बज़ाहिर सिर्फ अपनी जात का दीवाना है, वो कैसे इसके काले धन से वाकिफ था। तुम मुसलसल इसे धोखा देती रही हो। दांत तो सैफ तहाइफ पैसे इन सब के लिए तो कितनों के साथ वक्त गुजारा है। मुझे तो सोच कर घिन आती है। इसके नाक मुंह चढ़ाते पर जर्लिश ने हथेली में नाखून गाढ़े थे। तुम भी कोई ऐसे दूध के धुले नहीं हो हजल सामियान। दूध का मैं नहीं तो आबे जमजम से धुला हूँ। आंखें चपकते यकीन दिलाया। जर्लिश इसकी ढिठाई पर शशदर रह गई थी। मैं ज़ुएब को यूं नहीं छोड़ूंगी। टांग पर टांग चढ़ाते गोया हुई। जज्बात गए भाड़ में, इनसे पेट की आग नहीं बुझती। कोई मसला नहीं, वो अब भी यहीं आ रहा है। दोनों को आमने सामने देखकर
आमने सामने बिठाकर सबूत दिखा दूंगा, तुम तब तक कलमा दोहरा लो। नोट गिनते गिनते कहीं भूल न गई हो। सोफे पर पीछे होते इसने पुष्ट पर एक हाथ फैलाया। कलमा क्यों दोहराऊं? मेरा निकाह होने वाला है, जनाजा उठने वाला है। मरकजी दरवाजे की सम देखते वो चहक कर बोला। जर्लिश की गर्दन में गिलती उभर कर मातूम हुई। ज़ोएब अग्रेसिव नहीं, वो मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, कभी चिल्लाया तक नहीं। अपनी खुशबख्ती जताई, आज चलाएगा, हाथ उठाएगा और फिर तुम्हें पिछले लॉन में दफना कर भी जाएगा। वो हनूज बेपरवाह था, जैसे वो तुम्हारी स्याहकारियों से नावाकिफ है, वैसे ही तुम भी इसके बेबहा राजों से अनजान हो। जहाँ एक तरफ गिराते जर्लिस्ट की हैरान कैफियत का जायजा लिया। इससे कबल वो कोई इजहार करती पथरीली रोश पर अब गाड़ी ठहरने की आवाज़ आई। फिर किसी ने दरवाज़ा बंद किया और बिना आवाज़ की चाप समेत राहदारी में एक वजूद नुमाया हुआ। नीली सुरमई शर्ट के साथ स्याह स्लिक और छोटे कटे बालों वाला ज़ोएब जुलकरनैन चौखट पर ठहर गया। पहली निगाह इस हस्ती तक गई जिससे दिल की हर राह जा मिलती थी। जर्लिश की धड़कन बुलंद थी और ज़ोएब की मत्थम वहां खड़े खड़े जम जाओगे। हीरो, इधर आओ। इधर आकर अपनी मिस्टर टोबी के सामने बैठो। हजल ने हाथ उठाते करीब बुलाया। ज़ोएब सस्तरुवी से मेज की दूसरी सिमत अकेले सोफे पर बैठा, निगाहें अब तक जर्लिश पर थी। वो कितने दिनों बाद दिखी थी। इनकी आखिरी मुलाकात का अख्ताम भी एक झगड़े पर हुआ था। तुम ऑफिस क्यों आई थी? बेख्तियार ज़ोएब की जुबान से फिसला था। जर्लिश की आंखें फैली। तुम वही थे? मैंने मिसबा से पूछा तो वो कहता है, ज़ोएब सर, मैं वहाँ मुलाजिम नहीं, मालिक हूँ। जर्लिश, ना भी जाऊं तो हर खबर मुझ तक आ जाती है। इसने कदरे जताकर कहा। माफ़ी से पहले तक वो झगड़ा नहीं भूलता था, लेकिन तुम तक अपनी प्यारी महबूबा की खबरें नहीं आती। अजल की मदाखलत पर ज़ोएब उलझा। जर्लिश के हाथ पांव फूले। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अगले हफ्ते लाहौर जा रही हूँ, एक ब्रांड शूट के लिए। तुम्हें बताना भूल गई। इससे कबल हजल को कोई फसाद मचाता वो छत से खड़ी हुई। ज़ोएब के लहजे में कुछ ऐसा था कि जर्लिश को महसूस हुआ जो राज बेनकाब हुए तो वो इस पर कोई पर्दा ढांप ना सकेगा। मैं पूछना पसंद नहीं करता। आंखें उठाकर नखवत से कहा। जर्लिश की उड़ती रंगत को देखते हजल चेहरा छुपाए हंसा। तुम मेरे मैनेजर से बात कर लेना हजल, जो भी अगला शूट हुआ फिर हम इसे तय कर लेंगे। खुदा हाफिज करती वो आनन फानन वहां से भागी। अपनी हड़बड़ाहट में इसका आगे से आती मरजान शहीर के साथ जोरदार टकराव हुआ। चोट दोनों को लगी थी, मगर मरजान कमजोरी का इजहार कर दे तो मरजान न रहे। माजत करती वो भागी। इसकी चौड़ी जगह पर आकर बैठते वो डॉक्टर ने हाथ का इशारा किया। इसके पीछे कौन लगा था? मेरी गज भर की जबान। मरजान ने भुंचका तासुरात देखते हजल की रखी हुई सांस बहाल हुई। दोहरा होकर गिरते वो पूरे वजूद से हंसने लगा था। मरजान ने जवाबन ज़ोएब को देखा, जिसने लाइल्मी से कंधे उचकाए। इसके होलिये पर डॉक्टर की आंखें छूटी हुई। किसी फैंसी ड्रेस पार्टी पर जा रहे हो या वहां से आ रहे हो? ज़ोएब ने आईब्रो उचकाए। नहीं, वो तुम्हारा गार नशीनों वाला हुलिया खत्म हो गया है। पहली बार ऐसा लगता है कि मुंह धोकर निकले हो। हंसी से बेहाल होकर हजल सोफे पर नींद दराज था। मरजान की बात पर ज़ोएब ने अपनी दाढ़ी से पाक चेहरे और फौजी तर्ज में कटे बालों पर हाथ फेरा था। लाला ने कहा था, कटवा दो, मेरे हुलिये से कंपनी की साख पर बड़ा असर पड़ता है। वो अपनी लंबी जुल्फों के चले जाने के गम में था। अच्छा किया, अब कम से कम ये तो पता चलेगा कि मुंह शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पर। अपनी तारीफ पर वो बेख्तियार दंग हुआ। उसकी हैरत देखते हजल एक मर्तबा मजीद हंसा। ज़ोएब कभी अपनी कज़न को देखता तो कभी अरगवानी शलवार कमीज में मौजूद कज़न के दोस्त को। हजल के पास हाथ पर हाथ मारते जहां मरचान जरा सा मुस्कुराई, वहां हजल दिल खोलकर हंसा। मलाल और तासुफ से सर दाएं बाएं करते ज़ोएब ने दोनों की अकल पर फातिहा पड़ी थी। मेरी कम हिम्मती पर जवाल नहीं आएगा। वो अपने वादे के मुताबिक इसके दरवाजे पर मौजूद थी। खुले बाल पुष्प पर ढांपे थे, जबकि कलमों की सफेदी अब जाहिर थी। चौखट पर खड़े होते सारा ने एक चटनी सी निगाह माहिल के कमरे पर डाली। एक कुर्सी पर कपड़ों का ढेर था तो इस कुछ ही दूर जूतों के खुले डब्बों समेत खाने के खाली बॉक्स गिरे थे। इनसे नजरें फिरते सारा ने कमरे का दूसरा कोना देखा, जहां अलमारी पर आईना नस्ब था और इसकी नजदीक रखी मेज पर किताबें और अशिया का सामान बिखरा था। बिस्तर की चादर अलग थलग थी और इस सब फैलावे के बीच बैठा इस कमरे का मालिक मजे से उंगलियां दौड़ा रहा था। बैग पर बैठे
माहिल पाँव बिस्तर की पायंती पर टिकाए मोबाइल पर मुसलसल गेम में मगन था, अपने पीछे सारा की मौजूदगी से यकसरे बेखबर। माहिल सारा के पुकारने पर इसने पलट कर देखा, कानों पर चढ़े हेडफोन बाहर की आवाज़ों पर बंदिश थे। सारा ने इशारा करते इन्हें उतारने का कहा। मुझे ज़रूरी बात करनी है तुमसे। हाँ तो वहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आए, बैठे। माहिल ने साथ रखा दूसरा बैग थपथपाया। कमरे में फैले गंदे गंध से इसे बेख्तियार कराहत हुई थी। जाने कितने अरसे बाद वो इसके कमरे में आई थी। तुमने कभी यहाँ की सफाई नहीं की? भाभी की बात पर माहिल ने अपने कमरे में देखा। बगौर जायजा लेने के बाद इसे बस इसे एक ही खामी दिखी। अरे वो कपड़ों का ढेर। मामला रफा दफा किया, बरीरा ने धोने हैं, बाकी साफ सफाई बरी करती है जब इसका दिल चाहे, और जब तुम्हारा दिल चाहे तो तुम साफ सफाई के बजाय क्या मजीद गंद फैलाते हो। एक घर में होते हुए भी सारा बेइंतहा बातों से अनजान थी। ये बात तो इसके इल्म में आई ही थी। आज थी कि माहिल के कमरे का फरीजा बरीरा के नातवा कंधों पर था। सारा की मिसाल इस मर्द की सी थी जो से जायद दिन आधे से ज्यादा दिन घर से बाहर गुजारता और फिर घर के कामों को माँ की नज़र से देखता, अपनी जानिब से हर तरफ अमन समझता। अगर माँ नहीं बताएगी तो इसे मसला नहीं दिखेगा। आपका ख्याल था कि भाभी अपने कपड़े खुद धोता हूँ। सर झटकते यूं कहा जैसे फख्र की बात थी। हाथ पाँव तुम्हारे सलामत है, मुझे लगा इस्तेमाल करना भी जानते हो गए। माहिल बदमजा हुआ। सफाई की इंस्पेक्शन अगर हो गई हो तो जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना। सारा गहरी सांस भरकर रह गई थी। जब कुछ देर तक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ न आई तो माहिल ने उलझकर सर उठाया और अब साथ रखे नर्म मोड़े को खींचते इस पर खाने के जर्रे झटक रही थी। कोई परेशानी की बात है क्या? माहिल को लगा जैसे भाई भाभी में कोई झगड़ा छिड़ा है। तभी दी तभी दी अकेली आई है। हो ना हो भाई ने ही कोई पंगा लिया होगा, वरना भाभी तो बड़ी शरीफ है। जन्नत भी की हालत नाजुक है। कोई जन्नत भी कौन जहन वाकई भलाई बैठा था। आगा मीना की नानी। बेनियाजी का इरादा चाह कर भी न कर पाया वो, और दिल की रफ्तार में तेजी आई। अब खून की जगह तजस्सुस बहने लगा। क्या हुआ इन्हें? कैंसर था और अब अपने आखिरी मराहल में है। कीमो करवाने का भी अब कोई फायदा नहीं रहा। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। तदफीन की तैयारी करनी है। अगले ही लम्हे सारा ने तेज हाथ से चपेट माहिल के कंधे पर लगाई। कराते हुए वो 2 फीट दूर हुआ और बाजू सहलाते इस पर फूंक मारकर टकोर करने लगा। जब जनाजे का मसला नहीं है तो फिर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? वो रुहासा हुआ था। उन्होंने मुझसे रिश्ते की बात की है। मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल तुम्हारा आया। बज़ाहिर बेपरवाह बनते इसका दिल अंदर बेलों उछल रहा था। हर सू अब बस बाहर ही बाहर थी। तुम्हारी नजर में कोई तो होगा जिससे हम आगा मीना के लिए बात कर सकें। और अगले ही लम्हे बाहर के पत्ते झड़ गए, फूल मुरझाने लगे और शादाबी खज़ां रसीद हुई। कड़वा सा मुंह बना थे माहिल ने हाथ उठाए। यह अजीब फिल्मी सीन है। नानी के पाँव कब्र में है और देखनी इसे नवासी की बारात है। अब ये बात इसके नाच गाने की उम्र थोड़ी है। अल्लाह को याद करे नानी मर गई तो इसके सर पर तुम्हारा एक केस बहनोई बैठा है। तुम्हारा एक बहनोई बैठा है, वो ब्याह लेगा। वो कहना चाहता था ब्याहने देंगे, लेकिन कह न सका। मीना के मामलात में दिल बेईमान सा था। मेरी नाक में अजीब दम किया हुआ है। हम तुम्हारी तरफ से इनकार कर चुके हैं और तो हर दूर कर चुके हैं तो हर 2 रोज बाद फिर से कॉल करका देती हैं। मैंने भला कोई मैरिज ब्यूरो खोला है? सर झटकते सारा ने गर्दन में उठते दर्द पर हाथ रखा। अब के जब माहिल बोला तो वहां बिजली उकताहट और अजली आर्जदगी मफकूद थी, क्योंकि इनके अपने खानदान से अच्छे ताल्लुकात नहीं। जब तक हम वहां रहे हैं मैंने कभी किसी मेहमान को आते जाते नहीं देखा। सुनने में आया था कि इनकी बेटी ने बिरादरी से बाहर शादी की थी तो गांव वालों ने माँ बेटी को कतई ताल्लुक कर लिया था। बेटी के सिवा इनका कोई था नहीं, और अब यकीनन नवासी का भी नानी के सिवा कोई नहीं होगा। सारा खामोश रही। इसकी जिंदगी में भी तो महज कुछ ही रिश्ते थे। एक माँ छूट गई थी और अब मियाँ ही कुल कायनात था। वो अपनी नवासी को इस घर से दूर क्यों नहीं भेज देती? डॉक्टर बन रही थी ना वो बोलते हुए हिचकिचाया। बन चुकी है, अब रेजिडेंसी शुरू होगी। मगर मसला वो नहीं, अब्बास है। जहां भी जाएगी वो इसके पीछे आएगा। माहिल ने तस्वुर ही तस्वुर में इस लंबे आदमी की गर्दन दबोची
اور تم جانتے ہو اس ملک میں عورت تنہا نہیں رہ سکتی، ارد گرد کے مرد اس عوامی ملکیت سمجھ کر پیش آتے ہیں۔ تو ملک سے باہر بھیج دیں؟ ماہر نے انوکھی تجویز کی۔ کہا تھا میں نے، لیکن پھر معلوم ہوا کہ جتنا بچا کچا تھا وہ سب جنت بی کے علاج میں لگ گیا ہے۔ وہ اب بھی ایک ہاتھ سے گردن دباتی رہی۔ علاج کا فائدہ بڑھیا نے بچنا تو تھا نہیں۔ دوبارہ فضائی حملہ ہوا۔ اس مرتبہ لگنے والی چپٹ پچھلی سے زیادہ کراری تھی۔ اس میں غلط کیا ہے؟ ان کو چاہیے تھا کہ مستقبل کا سوچتے، نہ کہ حال کے نہ ٹھیک ہونے والے مسائل سلجھاتے۔ ہٹ دھرمی سے کہتے ناخن چبائے۔ پھر تم اپنی بہن پر پیسہ کیوں لگاتے ہو؟ وہ بھی تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ بتاؤ اس کی زندگی کے لیے محنت کیوں کرتے ہو؟ ناخن کے گرد جلد اترتے وہ غیر مرئی نقطے کو دیکھتا رہا۔ اس کی جانب مڑتے سارا کچھ آگے ہوئی۔ جن سے دل کا رشتہ جڑا ہوا نہیں، مجبوریوں کے نام پر چھوڑا نہیں کرتے۔ جلد کو ترتے دانت ٹھہرے۔ دل کے رشتے پر ذہن میں پھیلا خیال آیا۔ جامنی شلوار قمیض سے آنچل اور پاؤں میں مقید سفید چپل۔ اتنے مہینوں بعد اب اس کا ایک مزمع تو حل ہوا۔ ربید بھائی کیا کہتے ہیں؟ اس نے تھک کر سارا کی جانب دیکھا۔ تمہارے انکار پر وہ بظاہر چپ ہو گیا تھا، مگر وہ مینا سے تمہاری شادی پھر بھی چاہتا ہے۔ میں کچھ کماتا بھی نہیں ہوں بھابھی، بیوی آ جائے گی تو اس کے خرچ کیسے اٹھاؤں گا؟ ماہیل نے ماتھا مسلتے افسردگی سے کہا۔ لیکن تم تو انکار کر چکے ہو۔ سارا نے کے تعجب آمیز انداز پر اس کے دل کی اٹھتی آواز پر دوبارہ دب گئی ہو۔ ہونٹ جوڑتے اس نے ہاتھ گرا دیے۔ وہ سب کا محسن اور خود کا مخالف تھا۔ یہ ایک انسان کی زندگی کا معاملہ ہے ماہی۔ تھنک وتھ کلیئرٹی۔ اس کے چہرے پر لہجہ پھٹ کو نفرت کی سی آئی، جو پلک چھپکتے اکتاہٹ میں بدلی۔ میں سوچ کر ہی رہا ہوں بھابھی، میں ایک شادی کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ مرد نے نگاہیں چرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ بات میں نے انہیں سمجھائی نہ ہوگی؟ بہترا کہا ہے، مگر ان کا ایک ہی موقف ہے، مرد کی زندگی میں رزق اس کی عورت سے آتا ہے۔ شادی کر دو، سر پر پڑے گی تو ذمہ دار ہو جائے گا۔ ماہر تلخی سے ہنسا تو دنیا اس کی جدوجہد کو کاہلی سے تشبیہ دیتی ہے۔ یہ شادی بریرہ نہیں چاہتی۔ اس نے مجھ سے قسم اٹھوائی ہے کہ اگر میں نے وہاں کی تو وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ جانا تو اس نے ایک نہ ایک دن ہے ہی۔ تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو، اگر ہاں چاہتے ہو تو کر دو۔ ماہر آنکھیں چھوٹی کیے بھائی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے تاثرات پر معتجب ہوتے سارا کھنگاری۔ آپ اور کسی کے معاملات میں اتنی دخل اندازی کہیں کوئی ذہنی صدمہ تو نہیں لگ گیا دی؟ اور یہ رہی تیسری چپیٹ۔ اب کے ماہر احتیاطی تدابیر کے تحت بستر پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں صرف ربید کا ساتھ دے رہی ہوں۔ وہ نہیں چاہتا بریرہ کے سابقہ سسرال کی خواہش مکمل ہو۔ جھٹکے سے کھڑے ہوتے وہ ہنکار بھری، میری بلا سے تم سنگل مرو۔ ہاتھ چھڑکتے وہ دروازے کی سمت مڑی، جب پیچھے سے ماہر کی آواز نے قدم روک لیے تھے۔ یاد ہے ہم قدسیہ آنٹی کے 40ویں سے واپس آ رہے تھے تو آپ اور بھائی کچھ کھانے کے لیے موٹر وے پر اترے تھے۔ سارا رخ پھیرے کھڑی رہی۔ تب پیچھے بریرہ نے مجھ سے کہا تھا مجھے آقا مینا نہیں پسند، بہت مغرور سی ہیں، اور جب ہر وقت خاموش سی رہتی ہیں۔ پہلی بھابھی بھی عجیب بورنگ سی تھے، اللہ نہ کرے میری دوسری بھابھی بھی ایسی ہو۔ بستر پر نیم دراز ہوتے ماہر ہنسا۔ ہنسی اب بڑھی نہ تھی جب اگلے پل کپڑوں کا ڈھیر اس کے منہ پر آیا۔ کرسی پر رکھے کپڑے اچھال کر نکلتی سارا نے اپنے پیچھے دروازہ اٹھا کر مارا۔ بدقسمتی سے وہ بند ہو کر دوبارہ کھل گیا۔ ماہر کے کہکا نے اس کا دور تک تعقب کیا، اپنے میلے کپڑے اٹھا کر واپس کرسی پر سجاتے ہنوز مسکراتے رہا۔ خیالوں ہی خیالوں میں دلہا بنے بیٹھا تھا، شاید میں زوال میں رہ کر نہیں مروں گا۔ گھڑی کی سوئیاں 11 پر ٹکی تھی۔ تاج در کے اگلے صحن میں 2 گاڑیوں سمیت ایک بائک خاموش کھڑی تھی۔ پکے سیمنٹ کا وہ صحن کشادہ اور قدرے کم کندہ تھا۔ اگر صحن کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوتے گھر میں جھانکو تو اس وقت برآمدے کی بتی جلتی ہوئی ملے گی۔ باورچی خانے سے نکلتی سارا نے پانی کا بھرا جگ میز پر رکھا اور پھر کرسی کھینچتے ربید کے مقابل بیٹھی۔ سادہ سفید چکن کاری کے کرتے میں آستین چڑھائے وہ گھر کے عام سے حلیے میں تھی۔ خاموشی سے چپاتی کا نوالا توڑتے ربید اور اس کے ماں بہن کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ وہ دیر سے گھر لوٹا تھا اور آتے ساتھ سارا اور اسے کھانا پروسنے لگی۔ کس پلانٹ میں تمہارا ٹرانسفر ہو رہا ہے؟ نوشہرہ یا ہری پور؟ سارا کا لہجہ سرسری سا تھا، پتہ نہیں جو حجل کی مرسی جیسے تم میری نہیں سنتی وہ بھی کہاں میری سنتا ہے۔ افسردگی سے ہنستے اس نے سر نہ اٹھایا۔ سارا کا نوالا چباتا جبڑا سست ہوا۔ میں نے کون سی بات نہیں مانی؟ ربید نے بھویں اچکاتے سے طنز کیا تھا۔ تم مجھے کہہ کر گئی تھی کہ میرا ساتھ دو گی اور وہاں جا کر مکر گئی کہ تمہیں تو یہ کام نہیں کرنا۔ Have you any idea how embarrassing
That was do you. रुबैद के तल्ख अंदाज पर सारा ने कंधे उचकाए। मैं तो हक बजानिब हूँ। तुमने साथ काम करने का वादा किया था, मगर ये तो साथ नहीं। जहाँ तुम प्लान पर काम करोगे वहां मैं लैब में एक निचले दर्जा की साइंसदान बनकर रहूंगी। मेरे इनकार पर नहीं, बल्कि तुम्हें खुद के साथ होती ज्यादती पर शर्मिंदा होना चाहिए। एक अदा से कहते इसने पानी का जग उठाया। किस बात की शर्मिंदगी? गिलास भरते एक रुबैद के नजदीक रखा और दूसरा अपने करीब। तुम इस वक्त मुल्क की दूसरी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक सरबराही साइंसदान हो रुबैद। तुमने अपनी निगरानी में एक दवा बनवाई है और इस सब के बाद तुम फैक्ट्री नुमा प्लांट पर बैठकर इजाद हुई चीज़ों की तामीर देखोगे। सारा को अपने शौहर की बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ था। तुम्हारी जगह लैब में बैठकर नई दवा बनाने की है, ना कि फील्ड पर जाकर पुरानी दवा बनता देखने की। खुद तजलील कर रहे हो। अपनी नशिस्त पर बैठते रोते हुए रुबैद ने लब सख्ती से मिलाए। आंखें बंद करते वो चेहरा चुका के आता। आपके खाने के आखिरी लुकमे पर लुकमा बनाती सारा शौहर के पीछे होते तासुरात भिजे हुए तासुरात बेनियासी से थी देख रही थी। अगर मैं सही दवा तैयार करवा दूं और प्लांट के मुलाजमीन इसकी तरकीब में बदल दें, मतलूबा अज्जा इस्तेमाल न करें, मवाद में रद्दो बदल कर दें और दवा को बेअसर बना दे, तो इसका मुझे कैसे इल्म होगा? थक कर कहते इसने मेज के दोनों जानिब हाथ रखे। प्लांट में मेरा ट्रांसफर है। धीरे से अंधेरे में रोशनी है। मैं वहां जाकर बासानी फरेब कार के मुतालिक मालूम कर सकता हूँ। इसकी आंखों में दिखता अज़म और पुरजोश लहजे पर सारा ने खामोशी से लब जोड़ लिए। सर हिलाते अब वो बर्तन समेटने लगी। रुबैद ने कुर्ते में रखा फोन निकाल लिया। कल रात तक तुम जानते थे कि मुजरिम कौन है और अब तुम कह रहे हो कि मैं मुजरिम मालूम करूंगा। क्या तुम्हारा शक दुरुस्त नहीं था? सारा ने सरसरी सा पूछा। नहीं यार, जिस पर शक था वो गरीब तो काफी दिनों से दफ्तर नहीं आया। प्लान की फुटेज देख ली, जहां वाकई हचल के मुताबिक हेर हेर फेर हुई है। फोन पर उंगलियां चलाते वो मसरूफ सा बोला। तब तक सारा तमाम बर्तन उठाकर बावर्ची खाने पहुंच चुकी थी। बेसन में गंदे बर्तन रखते सारा ने चढ़ी आस्तीन तंग की। यानी अब तो रजामंद हो हमारी फार्मा में नौकरी करने के लिए। खाने की मेज पर बैठे ही अपने इसे पुकारा। नहीं, वहां अगर तुम होते तो फिर भी संभाल लेती, मगर अकेले काम का लोड ज्यादा होगा। फिलहाल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुबैद आरज़दा सा होते अपनी निशिस्त पर बैठा वो बर्तन के लिए झाग बनाने लगे। लोग हजारों की तादाद में इंटरव्यू देकर गए हैं। सारा ने इन सबको रद्द करके तुम्हारी सिफारिश की है, बिकॉज आई वॉन्ट यू बी एट अ बेटर प्लेस। उस सब की स्टैंडर्ड सी जगह में तुम जितने भी साल काम करोगे, तुम्हारी सैलरी HS के जनरल रिसर्चर के से भी कम रहेगी। इस सब के स्टैंडर्ड से लेबॉर्ट्री का मशवरा भी तुम्ही ने दिया है था। बेजरर सा अंदाज वो इसी माजी का आईना दिखा गई। बर्तन मांजने के बीच इसने कहीं रुबैद का गुरूर भी रगड़ दिया था। 3 साल हो गए हैं तुम्हें यही पुरानी नौकरी करते। दुनिया आगे बढ़ने का सोचती है और तुम्हें बस खुश नसीब हो जो नसीब हो गया इस पर काने रहती हो। इसने कुछ उकता कर कहा। 7 साल हो गए हैं इसी पुरानी शादी में। लोग पार्टनर बदलने का सोचते हैं और मुझे जो नसीब हो गया बस इसी पर काने हूँ। गर्दन फेरगस ने दहलीज के पार बैठे मर्द को देखा। रुबैद के लब हिले, मगर कोई जवाब न बन पाया। ये बात खत्म करने का दुरुस्त। आई एम प्रेग्नेंट। सारा ने ऐसी बेध्यानी से बोला कि रुबैद अपनी बात बोलते बेजुबान हो गया। झाग से भरे हाथ, क्लिप से खींचे बाल और बढ़हना कलाइयों वाली इसकी बीवी बावर्ची खाने में खड़ी से देख रही थी। चंद सानिये यूं ही पुरस्कार सी नासमझी में बीत गए जब वो धीरे से उठा। मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इस अदनी सी नौकरी से के मुताबिक ही काम कर सकती हूँ। जज्बात से खाली सर्द लहजा लिए इसने नल खोलते हाथ नीचे किए। रुबैद लंबे डाक भरता इस्तकाया। चेहरे का रंग अब तक गैर था। हाउ मैनी मंथ्स? सांस रोके इसका लहजा मध्यम था। 2.5। हाथ झाड़ते सारा ने सर उठाया। रुबैद ने लरसते हाथों से उसके कंधे थामे ऊपर से नीचे तक देखा। वो अपनी बेध्यानी पर हैरान था। आखिर इसे अंदाजा क्यों ना हुआ? मुझे तो हफ्ते पहले मालूम हुआ था जब तुम घर नहीं थे। सोचा था वापस आओगे तो बताऊंगी। इसका रद्द अमल देखने के लिए इसने चेहरा उठाया, पर उना खौफ की झलक और बेयकीन हैरत में डूबी आंखों के जज्बात यकदम बदले। अब वहां शक, खुशी, इत्मीनान था। कदरे झुकते रुबैद ने एक बाजू अपनी बीवी के गिर्द लपेटा। फखर और उनसियत से इसका बाजू थपथपाते इसकी आंख के किनारे आंसू जमा हुए।
الحمدللہ 7 سال بعد اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی ہے۔ اب وہ سارا سے دیگر تفصیلات سننے لگا۔ برتن دھوتے وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہر جواب دیتی گئی۔ رات میں تاج بینا کے کمرے میں تکیہ درست کرتے وہ اپنا بستر لگا رہی تھی۔ اگر ماہر زجاج کو لگتا تھا سارا اس کمرے میں ٹھہری ہے تو اس کا اندازہ درست تھا۔ وہ کل رات بھی یہی تھی اور آج بھی بستر پر چتلے تھے۔ وہ ایک اور رت جگہ کے لیے تیار تھی۔ کیا میری دشواریاں بڑھنے والی ہیں؟ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔